Have you found him? अभय सर, आलोक सर को फोन किया आप? हेलो, हाँ, आलोक सर जुड़े? अच्छा अच्छा, ठीक है, तो हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करें, मैं उनसे परमिशन ले लूं? क्योंकि टाइम तो हो गया, वो फिर बीच में जुड़ेंगे, है ना? तो वी विल स्टार्ट, है? चंचल पांडे इज आल्सो देयर। हाँ हाँ, तो लेट वी स्टार्ट द प्रोग्राम। अंकिता इज रेडी? Yes, ma'am. Professor Ankita. Yes, ma'am. Yeah, it's okay. And Sitendra sir, have you joined the meeting? Dr. Sitendra Kumar Singh, our resource person. Hello? Hello. But he has no him. तो सितेंद्र सर ज्वाइन किए हुए तो वो रिस्पॉन्स देंगे ना उनको? आप नहीं म्यूट करिए, उनको बोलिए उनको अनम्यूट करने। सितेंद्र सर आप अनम्यूट करें। सितेंद्र सर, सितेंद्र सर आप अनम्यूट करें, मैसेज करो तो बाबू उनको। मैम की हाँ, बातों का ध्यान दें। अनम्यूट कर लीजिए सर। सितेंद्र सर, मैं उनको कॉल करूं क्या? ओके ओके, सितेंद्र सर, right, he is ready now. So we should start with that. Alok sir has also given the permission, okay? Then let me start that. Let me start it. Sunil sir is there now? Sunil sir and Ankita ma'am is there now? Yes, ma'am. I am. Okay. Okay, sir, we are starting now. Sitendra sir is also there? Sitendra sir, you unmute yourself. Yes, tell him to unmute. Okay. It's okay. It is decided. Okay. Now, good afternoon, everybody present in this assembly of Galaxy of Intellectuals. Honorable Patron Sir, Co-Patron, and each and every member of organizing team our Dr. Ankita Oja and Dr. Sunil Kumar, and our technical staff and BCA Professor Dr. Anna Abhay Kumar Mishra, and all dear members of college family joining this webinar, and all our dear students. Today, on the occasion of National Science Day 2025, we celebrate the glory of our scientists who, despite of so many lacking and without any facilities, have done wonderful discoveries, making our country proud and surprising the Western world at that time. And today, our proud nation is celebrating 39th National Science Day. It was first started to celebrate in India on 28th February 1927
on the recommendation of National Council of Science and Technology, New Delhi, who recommended 1986 to commemorate the anniversary of discovery of Raman's effect on 28 February 1928. 1928 में डॉक्टर सीवी रमन ने रामन्स इफेक्ट का डिस्कवरी किया था जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर आधारित था. He was awarded Nobel Prize for Physics in 1930 for this. और Professor C.V. Raman was first black person and first Indian to receive this prestigious Nobel Prize at that time. Now, about C.V. Raman, he was from a middle class family of Tiruchirappalli. वो बहुत साधारण परिवार से थे तिरुचिरापल्ली में जो एक केरला में है. And was born on 7th November 1888. His full name was Chandrasekhar Venkataraman. In 1994, he obtained his graduation and degree from University of Madras and topped there with gold medal. He continued to hold such remarkable achievements and awarded so many prestigious awards like Nobel Prize, Bharat Ratna, Lenin Peace Prize, or so many awards. Now, National Science Day is celebrated mainly to remember his glory and to encourage a temper of scientific innovation, curiosity, and awareness among all students, researchers, and in the general public. Theme for today by Government of India in 2025 is Empowering Indian Youth for Global Leadership in Science and Innovation for Viksit Bharat 2047. बच्चों, आप लोग सबको पता ही होगा कि कोरोना में भी इंडिया ने बढ़ चढ़कर कोरोना के वैक्सीन का सबसे पहले इजाद किया और उससे हमने काफी अच्छा बिजनेस करके कोरोना के समय में इंडिया को इकोनॉमिकली एंड साइंटिफिकली ग्लोबल लीडरशिप के फ्रंट पे खड़ा किया था. तो अभी जो विजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यही है कि हमारे इंडियन यूथ को साइंस और इनोवेशन में इतना एम्पावर किया जाए कि वो विकसित भारत 2047 का जो टारगेट है उसको ये अचीव कर सकें. तो इसलिए अभी हम लोग इसी मोटिवेशन के साथ आज यहाँ पर जुड़े हैं. This theme is aimed to provoke and encourage young scientist students to lead India's progress through innovation and scientific leadership in the world. But joining public this drive is equally important. So, motto of today's is building public trust in science. And let me add all students, all public in this science. Let me generate a temper and interest in every person to feel science, think science, enjoy science, and making science integral part of our day-to-day thinking, activities, and innovations. In this context, I would like to welcome a senior scientist from Simphar Dhanbad. He was Dr. Sitendra Kumar Singh. Dr. Sitendra Kumar Singh. He was a senior scientist in a CSIR Simphar Dhanbad, and he has done so many projects from Government of India on wastewater treatment and recycling. He has also implanted some plants also and working in a very vigorous terms on that. He has also worked on its effect on cancer-causing integrities in children and adults. Now, I would welcome Dr. Sitendra Kumar Singh to deliver his lecture on his topic. That is, the topic is health risk assessment of groundwater on human being. Sir. Yes. Sitendra sir. Yes. Okay. Start your lecture, sir. Okay, ma'am. Thank you very much. Okay. Thank you very much for joining today's webinar, sir. Okay. Good afternoon, everybody. So, myself, Dr. Chitendra Kumar Singh, and I am working from the Water Resource Management CSIR Simphar Dhanbad. And today is a lecturer for the health risk assessment of groundwater quality on human being. So that is the first part of the introduction part. So हम लोग जानते हैं कि ground water as a major sources of the drinking water.
natural and chemical composition of groundwater is affected by type and depth of soil, and groundwater contain negligible amount of suspended solid and organic matter and observable amount of the mineral. And that is the next is the groundwater pollution. So that is a natural and anthropogenic activity जो हमारी नेचुरल और जो एंथ्रोपोजेनिक और जो मेन एक्टिविटी जो है जो हमारी रिस्पॉन्सिबल होती हैं ग्राउंड वाटर की जो क्वालिटी को वो धीरे धीरे वो स्लोली वो डेटेरियोरेट होते होते जाती है, जिसके कारण क्या है कि तो जो भी हमारे हैवी मेटल्स हैं जैसे कॉपर, जिंक, आयरन, मैग्नीज, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट और जो अदर हैं जैसे लेड, क्रोमियम, निकल, कैडमियम, आर्सेनिक, ये सब टॉक्सिक होते हैं जो कि और ये वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन में बहुत स्मॉल मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन अगर ये ह्यूमन हेल्थ से इसका जो है ये जब ये कांटेक्ट में जो आता है तो चाहे वो छोटी ही चीजें मात्रा में जो है वो जो आएगा तो उसको स्किन कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैंसर, लीवर कैंसर, किडनी कैंसर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द कैंसर की भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो यूनाइटेड स्टेट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यूएसईपीए ने जो है harmful health consequence of health matter in people polluted biological medium and the environment. It helps to classify the likely source of risk and threat of danger on the health. Ingestion और जब हमारा ये जब जो मेटल जब कांटेक्ट आता है ह्यूमन में तो वो तीन जो है पाथवेज में जो होता है जो कि हमारा इंजेक्शन है, इनहेलेशन और क्यूटेनस होता है, जो कि इसमें इंजेक्शन पाथवे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जो कि हमारा ग्राउंड वाटर ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड होता है। अब जैसे ये हमारे वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स हैं जो कि आप लोग खुद जानते होंगे कि वाटर क्वालिटी ये BIS 2012 की ये लिमिट है और ये इसमें फिर परमिसिबल लिमिट है, सब तो आप लोग जानते हैं। लेकिन जैसे आयरन है, आयरन में जो है जो BIS 2012 में केवल उसकी 0.3 ppm होता है और लेकिन जो और परमिसिबल लिमिट नो रिलैक्सेशन होता है। और ऐसे ही जैसे मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, कैडमियम हो गया, क्रोमियम हो गया। और जो अभी मेरा जो रिसेंट जो रिसर्च एरिया था इसमें मैंने ये 6 मेटल का मैंने यूज किया और वो जो ये 6 मेटल हैं उनको फिर मैंने देखा कि उसका जो है चाइल्ड और एडल्ट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, नॉन कार्सिनोजेनिक और कार्सिनोजेनिक में उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि क्रोमियम और लेड एक टॉक्सिक मेटल्स होते हैं और कैडमियम भी एक टॉक्सिक मेटल में जो है आता है। और अब मटेरियल एंड अब जब हमने वो किया था और ये मेरा जो सैंपलिंग साइट था ये उधम सिंह नगर रीजन उत्तराखंड का है, जिसमें हमने 15 ग्राउंड वाटर सैंपल हमने एकत्र किए थे और 6 ब्लॉक से। तो उसमें हमने ये देखा कि जो आपका जो 15 ग्राउंड वाटर सैंपल लेने के बाद 500 ml clean polyethylene bottle from the 6th block of the Pantnagar region of Uttarakhand. पैरामीटर वाटर पहले हमने EPH, EC, TDS किया, जो pH, EC, TDS जो हम लोग पोर्टेबल EC, TDS मीटर से हम लोग करते हैं। हार्डनेस टाइट्रेशन मेथड से हुआ है, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड को टाइट्रेशन मेथड, chloride and nitrate that is the most important for the spectrophotometer method,
And is the next is the heavy metal iron, manganese, zinc, lead, cadmium, and chromium. It has been evaluated, determined by atomic absorption spectroscopic method, double AS, data analysis. So, first of the suitability of the groundwater for drinking purpose. Heavy for first we have to determine for the heavy metal pollution indices. Water quality pollution indices, that is the heavy metal pollution index, HPI, heavy metal evaluation index, HEI, and modified heavy metal pollution index, that is the MHPI. And in the next is the risk assessment for the hazardous questions and hazardous index that we have to determine. And is the heavy metal pollution index. So HPI को हमने जब नोट किया तो समीशन WI अपॉन समीशन ऑफ WI, जो कि समीशन जो WI जो है जो यूनिट वेट फैक्टर होता है विद nth पैरामीटर, और QI को हमने निकाला है समीशन ऑफ MI माइनस LI अपॉन SI माइनस LI इंटू 100. MI इज दी मेजर्ड वैल्यू, जो हमारा मेटल है उसकी जो ऑब्जर्वेबल मेजर्ड वैल्यू होती है वो हो गई. LI जो है जो हमारी डिजायरेबल लिमिट है, जैसे आयरन की हो गई, मैग्नीज की हो गई, ऐसे अब SI जो कि उसका मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, इसमें सबकी तो नहीं है लेकिन आपकी मैग्नीज और जिंक में जो है उसकी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है. तो दूसरे उसको हमने किया SI माइनस LI, तो उससे हमने निकाला HPI को. और उसके बाद हमारा आया है हैवी मेटल इवेल्युएशन इंडेक्स. हैवी मेटल इवेल्युएशन इंडेक्स को हमने इवेल्युएट किया HEI, तो MI अपॉन HMACI. MI that is the measured value for the ith parameter and is the HMAC for the maximum allowable concentration for the every metal. ये मैं बताना चाहूंगा. तो HPI को हमने जो निकाला है वो हमने निकाला है BIS 2012 के स्टैंडर्ड से, एंड इन द हैवी मेटल इवेल्युएशन इंडेक्स को हमने निकाला था WHO 2011 के स्टैंडर्ड से. उसके बाद जो आता है हमारा मॉडिफाइड हैवी मेटल पॉल्यूशन इंडेक्स, तो MHPI. अब जो रिमेनिंग की जो 2 इंडिसेस हैं HPI और HEI, ये उतनी सक्सेस नहीं रही, क्योंकि ये बताने में ये फेल रही कि हमारा जो भी ग्राउंड वाटर सैंपल है कि ये कौन सा एक्सीलेंट कैटेगरी है, कौन सा गुड है. जैसे आपने देखा होगा कि वाटर क्वालिटी इंडेक्स में WQI जब हम लोग निकालते हैं तो हम लोग ये जो है बताते हैं कि भैया कौन सा हमारा सैंपल एक्सीलेंट में आ रहा है, कौन सा हमारा सैंपल वेरी गुड या अनएक्सेप्टेबल कैटेगरी में जो है आ रहा है. लेकिन वो जो हमारा था HPI और HEI हमारे ये बता पाने में असफल था कि उसमें कौन सा हमारा प्रोडक्ट जो है ये हमारा एक्सीलेंट कैटेगरी में जो है आएगा या ये अनएक्सेप्टेबल जो आएगा. केवल वो ये बता रहा था कि जो भी है उसमें ये लोअर पॉल्यूटेंट है या मीडियम है या हाईली पॉल्यूटेंट है. अब MHPI जो अभी रिसेंट जो आया है 2018 में, जो कि इंडियन से ही एक चतुर्वेदी जी ने उसको वो दिया था MHPI को, मॉडिफाइड हैवी मेटल पॉल्यूशन इंडेक्स. तो MHPI को जब निकाला तो उसका निकाला WI ओमेगा I QI. ओमेगा I इक्वल टू WI अपॉन समीशन ऑफ WI, और WI is the unit weight of the ith parameter and is the WI is inversely proportional to the desirable limit.
So Wi equal to 1 upon Li. And Qi को हमने निकाला, फिर Mi minus Li upon Li. Mi is the measured value, Li is the desirable limit for the every metal, and this next is the UL, means upper limit. So अब इसमें हमने जब देखा कि UL है Mi minus Li, समीशन ऑफ Mi minus Li upon Li, इसमें हमने देखा कि इसमें हमने जो है, इसमें हमारा दो इंडेक्स आएंगे, एक पॉजिटिव इंडेक्स और एक नेगेटिव इंडेक्स। अगर जो है जो हमारी अगर जो हमारी पीआई की वैल्यू एलआई से कम है तो वो हमारा नेगेटिव इंडेक्स होगा, और अगर पीआई की वैल्यू एलआई से डिजायरेबल लिमिट से ज्यादा है तो वो पॉजिटिव इंडेक्स होगा। तो ये दो इंडेक्स हैं। अब ये नेक्स्ट जब हमारा रिजल्ट एंड डिस्कशन पार्ट में फिर हम बताएंगे इसको कि हमने इसको किस प्रकार से निकाला था, और ये इसमें कौन सा मेटल आएगा वो आगे हम डिस्क्राइब करेंगे। अब आता है नॉन कार्सिनोजेनिक रिस्क असेसमेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। So first of all, determine for the hazard quotient for the ADD for the average daily dose upon RFD for the reference dose of any metal of the maximum daily dose of the metal. So RFD, that is the value of the RFD for the different metal have been for the according to US EPA, यूनाइटेड स्टेट्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने आरएफडी की वैल्यू को अलग अलग, आयरन की अलग है, मैग्नीज की अलग है, जिंक की अलग है, ऐसे सब की अलग अलग वैल्यू को उसने बताया है। अब एवरेज डेली डोज OI मींस दैट इज द ऑब्जर्वेबल वैल्यू जो हमारी आती है, ऑब्जर्वेबल वैल्यू जो हमारी मेटल है उसको हमने उसके जो मेजर्ड वैल्यू है into IR, that is the ingestion rate। इंजेक्शन रेट में जो है आप 1 लीटर पर डे फॉर द चाइल्ड के लिए होता है, और 1.48 मीटर क्यूब फॉर एडल्ट के लिए हमने इसका लिया था अकॉर्डिंग टू द US EPA। और इन्वायरमेंटल एक्सपोजर फ्रीक्वेंसी फॉर द EF इक्वल टू हो जाएगा हमारा 350 डेज, एंड इज द ED इज द एक्सपोजर ड्यूरेशन फॉर द 24 ईयर फॉर ए एडल्ट एंड 6 ईयर फॉर द चाइल्ड, and upon BW, that is the body weight for the 52 kg for adult, and is the 16.3 kg for the child, and 80 for the average time को हमने जब डिस्क्राइब किया निकाला है तो उसको हम करते हैं ये ED into 365, ED equal to 24 into 365 for adult, and 6 into 365 for a child. Hazardous index में जो है जो HI है समेशन ऑफ HQI, जो भी हमारा HQ निकालेंगे, जो हमने हजार्डस क्वोशिएंट जो हमने निकाला है एवरी मेटल का, ये हमारा हजार्डस क्वोशिएंट को हम निकालते हैं HQ इक्वल टू ADD अपॉन RFD। तो ADD एवरेज डेली डोज को हमने इस फॉर्मूले से निकाला है। उसके बाद और जो RFD की वैल्यू जो है जो मैंने पहले भी आपको मैंने बताई थी कि हर जो मेटल की अलग अलग होती है। हजार्डस इंडेक्स HI इक्वल टू समेशन ऑफ HQI। तो अगर इसमें हम देखते हैं कि अगर जो है हमारी हजार्डस इंडेक्स की जो वैल्यू है
अगर ये 1 से एबव आती है तो ये हमारे लिए डेंजरस है, और अगर ये हजार्डस इसकी अगर वैल्यू 1 से लेस आती है तो ये नॉन डेंजरस में जानी जाती है। तो HI ऐसे ही HQ भी है, जो हमारा जो अगर जो है HQ की वैल्यू जो मान लिया जाए क्रोमियम का है या मेटल आपका ये निकल का हो गया, आयरन का हो गया, लेड का हो गया, और सबको जोड़ेंगे तब हमारा ये HI जो आएगा, समीशन ऑफ HQ है। अब कार्सिनोजेनिक रिस्क असेसमेंट, अब कार्सिनोजेनिक रिस्क असेसमेंट में हम पहले निकालेंगे, हम लोग सीधे एवरेज डेली डोज जो हमने पहले निकाला था वही है, और CSF दैट इज द कैंसर स्लोप फैक्टर। कैंसर स्लोप फैक्टर अभी हमने अपने जो रिसर्च एरिया में हमने 2 मेटल लिए थे, लेड एंड क्रोमियम, जो कि टॉक्सिक है, और जो लेड एंड क्रोमियम के में जो कैंसर स्लोप फैक्टर दोनों का जो है CSF वैल्यू अलग अलग जो होती है अकॉर्डिंग टू द USEPA। और अगर लाइफ टाइम कैंसर रिस्क जो है, अगर इसकी वैल्यू हमारी 10⁻⁻⁴ टू 10⁻⁻⁶ के बीच में आती है तो यह एक्सेप्टेबल रेंज में आ रही है। अगर जो है हमारी वैल्यू 10⁻⁻⁴ से लेस आ रही है, दैट इज द 10⁻⁻⁴ से ज्यादा आ रही है, ज्यादा आ रही है, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे लिए डेंजरस है। अब हमारा था, अब हमने जो पैरामीटर लिए थे उसमें मैंने केवल अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं केवल इसके बारे में, ये आपका जो ये मैंने जो मेटल लिए थे, जैसे आयरन हो गया, प्री मानसून सीजन में लिया है और पोस्ट मानसून में भी लिया था, तो उसमें मैंने देखा कि आयरन की वैल्यू 0.02 से 1.68 ppm और 0.01 टू 0.675 मिलीग्राम पर लीटर ये मैंने पाया पोस्ट मानसून में। तो हमने जो ये देखा कि इसमें हमने देखा कि जो आयरन, मैग्नीज और जो क्रोमियम की जो वैल्यू है वो जो है प्री और पोस्ट मानसून में कहीं कहीं के सैंपल में अधिक पाई गई है, अपने जो स्टैंडर्ड लिमिट से अधिक पाए गए हैं। अब हमने देखा कि स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन मैप फॉर द आयरन बिफोर रेनी और आफ्टर रेनी सीजन, दैट इज द प्री एंड पोस्ट मानसून सीजन। तो हमने देखा कि जो हमने ये आप देख रहे होंगे, जो ये हमारा जो ये जो रेड वाला जो ये पार्ट है, ये हमारा हाईली जहां पर ये आयरन सबसे ज्यादा है, जो हमारा ग्रेटर देन 0.3 ppm के इक्वल है, ये यहाँ से ज्यादा जो आ रहा है। तो हमने ये देखा कि ये साउथर्न पार्ट में आ रहा है, और थोड़ा सा पार्ट हमने देखा कि ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आ रहा है प्री मानसून में, और पोस्ट में भी लगभग अपने साउथर्न पार्ट में, और वो थोड़ा सा पार्ट हमारा ये यहाँ आया है वो नॉर्थ ईस्ट में। ऐसे ही हमने मैग्नीज को देखा, क्योंकि हमने केवल अभी मैग्नीज, क्रोमियम और आयरन को लिया, क्योंकि आयरन, मैग्नीज, क्रोमियम में हमने देखा कि ये तीनों मेटल में हमारे जो है जो कुछ कुछ सैंपल्स में ये तीनों अपनी स्टैंडर्ड लिमिट से अधिक पाए गए हैं। जैसे कि अब इसमें हमने देखा कि ये जो मैग्नीज की जो वैल्यू है वो हमारा जो डिजायरेबल लिमिट अगर देखते हैं तो उसकी 0.1 ppm होती है, और अगर वो 0.1 से 0.3 और 0.3 से एबव, तो जो आपका 0.3 से एबव जो कि मैक्सिमम अलाउएबल लिमिट होगी, तो उसमें भी हमने देखा कि ये साउथर्न पार्ट में सबसे ज्यादा आ रहा है, और थोड़ा सा पार्ट हमारा ये नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट में भी जा रहा है। अब स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन मैप ऑफ द क्रोमियम,
क्रोमियम में हमने देखा कि क्रोमियम भी हमारा सबसे ज्यादा अधिक पाया गया नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, साउथर्न पार्ट में और ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट या ईस्टर्न रीजन में, ईस्टर्न पार्ट में भी ये ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद अब हमने देखा कि हमने ये देखा कि अब सब मेटल को हमने बता दिया। उसके बाद हमने जब हैवी मेटल पॉल्यूशन इंडिसेस को देखा, तो हैवी मेटल पॉल्यूशन इंडिसेस में HPI हो गया, हैवी मेटल पॉल्यूशन इंडेक्स। तो प्री मानसून सीजन में जो हमारी जो मेटल हैं वो इस सीरीज में आए, आयरन, फिर उसके बाद जिंक, फिर उसके बाद मैग्नीज, फिर क्रोमियम, फिर लेड, फिर कैडमियम। ये प्री में ऐसे ही पोस्ट में पहले जिंक, आयरन, मैग्नीज, क्रोमियम, लेड और कैडमियम। तो इसमें हमने ये देखा जो हमारा HPI को हम ये अगर जो हमारी जो HPI की वैल्यू 26 से जो है लेस होती है तो उसको हम मानते हैं कि ये लोअर पॉल्यूटेड है, और अगर वो 26 से 52 के बीच जो आती है तो वो मीडियम पॉल्यूटेड है, और अगर 52 से अबव आती है तो उसको हम कहेंगे कि ये हाईली पॉल्यूटेड है। तो उसमें हमने देखा कि 32% हमारा मीडियम पॉल्यूटेंट और 68% तो हमारा हाईली पॉल्यूटेड है, जो कि ये इसमें हमने ये एक फिगर से मैंने आप लोगों को ये बताया है कि 52 ये हमारा प्री मानसून सीजन का था और ये हमारा पोस्ट मानसून सीजन का है। हमने ये देखा कि लोअर पॉल्यूटेंट इसमें नहीं पाया गया। मोस्टली हमारा मीडियम और हाईली पॉल्यूटेड ज्यादा थे। अब हैवी मेटल इवैल्यूएशन इंडेक्स जो कि HEI है, और HEI के बाद हमने ये बताया कि अगर जो है हमारी HEI की वैल्यू 1.66 से कम है तो उसको हम लोअर पॉल्यूटेड, और 1.66 से 3.32 के बीच है तो मीडियम, और 3.32 से अगर वो अधिक है तो हाईली पॉल्यूटेड है। ऐसा 2002 में किसी ने इसको डिस्क्राइब करके इसको बताया था। तो उसको डिस्क्राइब करने के बाद हमने जब ये देखा तो हमने ये देखा कि इसमें जो है 10% सैंपल लोअर पॉल्यूटेड में पाए गए हैं, और ये 50% सैंपल हाईली पॉल्यूटेंट। ये प्री मानसून में और पोस्ट मानसून में हमने देखा कि ओनली 2% ग्राउंड वाटर सैंपल वो जो है हाईली पॉल्यूटेड है, और मीडियम में 18% है। मीडियम में 18 है और 68% वो हमारा लोअर पॉल्यूटेंट है। अब इवैल्यूएशन ऑफ MHPI, वो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी ये बताया था कि ये MH जो इससे पहले जो हमारी इंडिसेस थी जैसे HPI और HEI, ये हमारी फेल हो गई क्योंकि ये यह बता पाने में असफल थी कि कौन सा हमारा जो सैंपल्स है वो एक्सीलेंट कैटेगरी में है और कौन सा हमारा सैंपल पुअर में है, या कौन सा हमारा सैंपल गुड या वेरी गुड में है, या कौन सा हमारा सैंपल अनएक्सेप्टेबल में है, जैसा एज पर WQI में हमने बताया, हम लोग जानते हैं। अब आयरन हमने जो ये मेटल लिए हैं 6 आयरन, मैग्नीज, जिंक, लेड, कैडमियम एंड क्रोमियम। तो SI तो Li हो गया, Li दैट इज द डिजायरेबल लिमिट। तो आयरन की 300 वो हो गई ppb, हमने इसमें निकाला इसको ppb में, और Mn मैग्नीज 100, जिंक 5000, कैडमियम लेड 10, कैडमियम 53 सॉरी, एंड क्रोमियम इज द 50।
SI, that is the maximum allowable limit. तो आयरन की कोई मैक्सिमम अलाउेबल लिमिट नहीं है। मैग्नीज और जिंक की है, जो हमने निकाला 300 और 15,000 में, और लेड और कैडमियम और क्रोमियम की कोई भी लिमिट, मैक्सिमम अलाउेबल लिमिट नहीं है। और पहले हमने ये बता दिया था कि यूनिट वेट जो WI होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिजायरेबल लिमिट। तो 1/Li हुआ, WI इक्वल टू WI अपॉन समीशन ऑफ WI, ये तो यहाँ इक्वल टू 1 आ रहा है। फिर MI जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है, जैसे आयरन की हमारी देखा हमने 1350, 1350, 675 for magnesium, 145.6 for the zinc, 4.3 for lead, 2.3 for cadmium and chromium और 65। अब इससे हम ये बता देंगे कि इसमें आप लोग सीधे ये जान सकते हैं कि आयरन, मैग्नीज और जो क्रोमियम है इसमें अपने स्टैंडर्ड लिमिट से अधिक पाए गए। और फिर उसके बाद QI इक्वल टू हमने निकाला MI माइनस LI, जो सब इंडेक्स होता है MI माइनस LI अपॉन LI। तो MI that is the measured value, उसके बाद नहीं निकाली। उसके बाद हमने ये कहा था कि जो ये हमारा जो PI जो है, जो पॉजिटिव इंडेक्स और जो ये जो निगेटिव इंडेक्स है, निगेटिव इंडेक्स है, पॉजिटिव इंडेक्स और जो ये निगेटिव इंडेक्स है, जो अगर जो हमारी PI की वैल्यू, अब इसमें हमने फिर निकाला UL, अपर लिमिट हम निकालते हैं MHPI को, और उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जो हमने जो निकाला था QI इक्वल टू MI माइनस LI अपॉन LI, तो MI इक्वल टू हम कर लेते हैं SI, तो स्टैंडर्ड मैक्सिमम अलाउेबल कंसंट्रेशन के इक्वल वो हम मानते हैं। तो SI माइनस LI अपॉन LI, तो केवल हमने देखा कि जिंक और मैग्नीज की ही अपनी मैक्सिमम अलाउेबल लिमिट है, उसको निकाला। तो हमने ये देखा कि अगर हम ये देखेंगे कि अगर जो है, जो हमारी जो ये UL वैल्यू है, UL वैल्यू अपर लिमिट की वैल्यू अगर जो हमारा PI है अगर वो 0 आता है और NI जो है लेस देन -1 है, तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा वाटर एक्सीलेंट में है। और अगर हमारा PI, ये जो PI इक्वल टू 0 और ये और अगर UL अपर लिमिट इज लेस देन PI, तो हम कहेंगे PI is less than UL, that is a very good, and if the PI is less than UL by 2, that is the good category। और अगर PI की वैल्यू हमारी UL से ज्यादा है, PI is greater than UL, तो हम कहेंगे कि यह हमारी अनफिट होगा पोर्टेबल पर्पज के लिए। तो हमने देखा कि इसमें देखा कि जो हमारा जो अपर लिमिट है हमने उसकी वैल्यू निकाली थी, अपर लिमिट की वैल्यू आई है 0.0436, और जो हमारा PI की वैल्यू है 0.16100। तो हमने देखा कि भाई PI की वैल्यू हमारी ज्यादा है, तो हमने देखा कि इसमें ये हमारा सैंपल जो है हमारा अनएक्सेप्टेबल कैटेगरी में जो है आ रहा है। उसके बाद अब ये MHPI को भी हमने ये बताया कि कौन कौन से सैंपल में हमने देखा कि इसमें हमने केवल देखा कि जो थ्री ग्राउंड वाटर सैंपल्स हैं वो सीजन में अनएक्सेप्टेबल कैटेगरी में वो पाए गए। प्री एंड पोस्ट मानसून सीजन, दोनों सीजन में वो अनएक्सेप्टेबल अनफिट कैटेगरी में वो पाए गए हैं।
और एक्सीलेंट में तो 68% एक्सीलेंट हो गया, और 6% हमने ये बता दिया कि अनएक्सेप्टेबल है, जो कि हमने ये पाई डायग्राम में इसको हमने दर्शाया है। अब उसके बाद है हमारा हजार्डस क्वेश्चन एंड हजार्डस इंडेक्स, एडल्ट एंड चाइल्ड पॉपुलेशन। इंजेक्शन, जब मेटल हमारा कांटेक्ट होता है ह्यूमन से, तो हमने जब तो वो 3 पाथवे में होता है, इंजेक्शन, इनहेलेशन एंड क्यूटेनस। इसमें आपका जो ये ड्रिंकिंग वाटर, ग्राउंड वाटर में ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो उसमें हमने ये देखा कि एक वो तो उसमें जो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो ड्रिंकिंग वाटर में हमने देखा कि जो इंजेक्शन है इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्सपोजर चैनल फॉर ग्राउंड वाटर असेसमेंट स्टडीज अपोज टू इनहेलेशन एंड स्किन एक्सपोजर। इसमें भी हमने जो HQ की वैल्यू निकाली और HI की वैल्यू निकाली प्री और पोस्ट मानसून सीजन में। तो हमने देखा कि एडल्ट और चाइल्ड के लिए, जो कि हमने इसके पहले मटेरियल एंड मेथड में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको किस फॉर्मूले से हमने डिटरमाइन किया है। तो हमने देखा कि हमने मोस्टली ये देखा कि हमारा जो अगर एवरेज वैल्यू है HQ और HI में, ये हमारा अगर एवरेज वैल्यू है तो बोथ सीजन में ये हमारे में अभी ये नॉन कार्सिनोजेनिक और मतलब कोई ज्यादा डेंजरस में है नहीं। लेकिन अगर हम लोग अलग अलग मेटल में हम लोग देखते हैं तो उसमें देखा कि क्रोमियम, जो कि मोस्ट बीइंग पॉल्यूटेड, ये ज्यादा पाया है। तो उसमें हमने देखा कि कहीं कहीं क्रोमियम की जो वैल्यू है HQ की वैल्यू कहीं कहीं 3.5 से भी एवो पाई गई है। तो अगर क्रोमियम की वैल्यू, और उसके बाद हमारा मैग्नीज और कैडमियम है, कहीं कहीं वैल्यू मैग्नीज की भी अबाउट 1 है, लेकिन ज्यादा नहीं है। लेकिन हमारा इसमें जो हमारी स्टडी एरिया है, हमने देखा कि जो हमारा क्रोमियम है वो हमारा मोस्टली पॉल्यूटेड है। ये इस स्टडी एरिया में ये मोस्टली ये पॉल्यूटेंट है। तो उसमें हमें जो, और अगर क्रोमियम से हमारा बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, लंग की प्रॉब्लम हो गई, एक्सेट्रा जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं ये। और अगर मतलब अगर हम स्मॉल मात्रा में ही अगर हम ये धीरे धीरे अगर इसको हम क्रोमियम को हम देते हैं, तो इससे प्रॉब्लम धीरे धीरे ये हमारा टॉक्सिक होता है और ये कैंसरियस के होने में के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये बिफोर और आफ्टर रेनी सीजन हो गया। इसमें भी हमने देखा कि जो लगभग देखा कि हमने प्री एंड पोस्ट मानसून सीजन में जो हमारे 9 ग्राउंड वाटर सैंपल्स थे, लगभग मोस्टली 9 ग्राउंड वाटर सैंपल थे, वहां पर हमने जो हजार्डस इंडेक्स की जो वैल्यू थी, HI की वैल्यू मोस्टली ज्यादा पाई गई है। 1 से जो हमारी 1 यूनिट है उससे ज्यादा पाई गई है। तो इसमें हमने ये कहा कि ये जो 9 ग्राउंड वाटर सैंपल दोनों सीजन में, ये वो सीजन में ये ज्यादा HI की वैल्यू ज्यादा है, जो कि ये नॉन कार्सिनोजेनिक में जो आ रहा है। जैसे कि कई तरह की प्रॉब्लम, जैसे कि लंग की प्रॉब्लम हो गई, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी इसमें देखी
गई हैं। फिर ये आपका मैंने ये बिफोर रेनी सीजन और आफ्टर रेनी सीजन को HI की जो वैल्यू थी एडल्ट और चाइल्ड में अलग अलग मैंने ये आपको बताया है ये फिगर में कि ये आपने देखा होगा कि ये बहुत पहले यहाँ पर ये प्री में ज्यादा है, पोस्ट में जो कम है। ऐसे ही यहाँ पर एडल्ट ये इसमें भी हो रहा है, ये आफ्टर रेनी सीजन में भी ये यही हमने देखा कि ये कम है। लेकिन आपका HI की वैल्यू जो है, हमने ये देखा कि जो HI की वैल्यू है चाइल्ड की, जो चाइल्ड की वैल्यू है वो ज्यादातर वो खतरनाक है। मतलब जो हमारे जो बच्चे जो जिनकी 16.3 kg जो चाइल्ड का जो बॉडी वेट है, वो हमारा हमने देखा कि ये जो है नॉन कार्सिनोजेनिक में जो आ रहा है और ये हमारे लाइफ टाइम के लिए डेंजरस हो सकता है। उसके बाद जो है जैसे कि कार्सिनोजेनिक रिस्क असेसमेंट, कैंसर रिस्क असेसमेंट है। लेड लेड को हमने देखा तो एडल्ट में देखा तो प्री मानसून में उसकी जब वैल्यू थी, हमने जो पहले ही मैंने ये आपको लोगों को बताया कि अगर जो वैल्यू है हमारी ये 10 पावर -4 टू 10 पावर -6 के बीच आती है तो हम वो कहेंगे कि हमारी ये एक्सेप्टेबल है। और अगर 10 पावर -4 से ज्यादा है तो हम कहेंगे कि ये हमारा डेंजरस कैटेगरी में है। कि तो हमने देखा कि एवरेज वैल्यू तो लगभग हमारी सही है, लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू हमने देखा कि क्रोमियम की वैल्यू प्री मानसून और पोस्ट मानसून सीजन में आपका एडल्ट और चाइल्ड में दोनों दोनों जगह हमने ये देखा कि ज्यादा पाया है। और इसमें भी हमने यही देखा कि जो चाइल्ड में जो है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा डेंजरस हो रहे हैं एडल्ट की जो है अपेक्षा, हमने ये देखा, ये पाया है। जैसे कि डिफरेंट टाइप के जो है कैंसर, लंग कैंसर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर, इवन लो बर्थ फैक्टर एंड ये increasing rate of the pregnancy for loss of the pregnancy, ये सब डिफरेंट टाइप के ये हमने ये देखा। तो इसमें ये सब कैंसर की जो ये प्रॉब्लम हो सकती है। और ये क्रोमियम जो कि इसमें देखा कि हमारा ये जो मोस्ट बीइंग ये पॉल्यूटेंट है, हमने देखा कि ये कार्सिनोजेनिक और नॉन कार्सिनोजेनिक में हमने यही देखा कि जो है ये हमारा सबसे ज्यादा पॉल्यूटेंट में क्रोमियम आ रहा है। उसके बाद हमने ये हमारा आ गया कंक्लूजन पार्ट। और आयरन तो हमने पहले ही बताया था कि 7 सैंपल ज्यादा थे प्री में और 3 में पोस्ट में हो गए। लेकिन जो हमारा क्रोमियम की जो वैल्यू थी 18%, दैट इज द 9 ग्राउंड वाटर सैंपल for higher in the pre-monsoon and 12% exceeded in the post-monsoon season for the standard reliquidity for the BIS 2012. Next is the HPI, that is the heavy metal pollution index, जो हमने पहले बताया कि 68% सैंपल हाईली पॉल्यूटेंट है और आफ्टर रेनी सीजन में 52% है। और HEI में हमने ये बताया कि 10% सैंपल बिफोर रेनी सीजन में है और 4% सैंपल आफ्टर रेनी सीजन में हाईली पॉल्यूटेड पाए गए। MHPI को हमने ये बता दिया कि जो 3 ग्राउंड वाटर सैंपल्स हैं वो बोथ सीजन में वो अनएक्सेप्टेबल अनफिट कैटेगरी में वो पाए गए हैं। हजार्डस इंडेक्स जो हमारा जो 9 ग्राउंड वाटर सैंपल थे प्री एंड पोस्ट मानसून सीजन में, दोनों सीजन में हमने ये देखा कि ये अनफिट है
एनी एज ऑफ द पीपल। वो किसी भी एज के लिए यह पॉपुलेशन के लिए यह जो है अनफिट पाए गए हैं। और कार्सिनोजेनिक जो हमारा जो ऑर्डर ऑफ जो पॉइजनस है वो क्रोमियम, उसके बाद लेड। क्योंकि हमने देखा कि हमारा जो स्टडी एरिया था, स्टडी एरिया में हमने देखा कि जो हमारा लेड जो है दोनों सीजन में हमारा लेड विद इन ए लिमिट में पाए जा रहा है। लेकिन जो क्रोमियम है, क्रोमियम दोनों सीजन में हमने देखा कि अधिक था। तो अगर हम ये देखेंगे कि तो हमारा सबसे बड़ी है, और अगर क्रोमियम ज्यादा हो रहा है तो डिफरेंट टाइप के जो है कैंसर होने की जो है संभावना होती है, जैसे लंग कैंसर, इंटेस्टाइनल कैंसर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, साइनस इश्यू, साइनस की डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी ये होने की संभावना होती है। अब इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है, रेगुलर मॉनिटरिंग करना होगा और रिमूवल ऑफ क्रोमियम मेटल। जो क्रोमियम का जो मेटल है उसको रिमूव करने की टेक्निक हमको देखनी होगी, तब जाके हम ये पानी को हम ये कह पाएंगे कि यह पानी अब ये हमारा फिट है। तो दैट इज द नेक्स्ट इज द थैंक यू। So thank you so much everybody. Thank you. Yes. स्टूडेंट्स जिनको क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं सर से। There are so थैंक many यू questions. थैंक यू मैम। जैसा कि सर ने अभी बताया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिली जो अभी पहले से नहीं पता था। सर से मेरा 2 क्वेश्चन है। बोलिए। सर, अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में देखा जा रहा है कि लगातार आर्सेनिक का मात्रा जो है वो बढ़ते जा रहा है। हाँ। वो ऐसा क्यों हो रहा है सर? और सर ये दूसरा मेरा क्वेश्चन है, जो अभी हम लोग का भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है, भोजपुर, बक्सर और वैशाली, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में हाई लेवल ऑफ आर्सेनिक है सर। इसको कैसे कम कर सकते हैं हम लोग? देखिए, अगर पहला चीज है कि अगर वहां पर आर्सेनिक ज्यादा है तो आर्सेनिक तो हम लोग जानते हैं कि ये कार्सिनोजेनिक में जो आ रहा है, और ये बहुत ज्यादा, और अगर थोड़ी सी भी मात्रा में हम ले लेंगे तो उससे डेथ भी जो हो सकती है। तो इसके लिए पहला तो हमारा काम है कि हमको आर्सेनिक को रिमूवल टेक्निक हमको देखनी होगी, और रिमूवल टेक्निक हमको खोजना होगा। एक जो प्लांट हमको अप्लाई करना होगा, तब देखना होगा कि जो हमारा ये जो आर्सेनिक रिमूव हो रहा है कि नहीं। और दूसरी बात ये है कि अगर हमारा कहीं भी अगर सपोज आर्सेनिक या हमारा क्रोमियम आ रहा है या आयरन जो आ रहा है, तो अगर वहां ज्यादा आ रहा है तो वो ज्यादा क्यों आ रहा है? तो देखिए, जैसे कि अगर मैंने देखा अपने एरिया में कि जो क्रोमियम था, क्रोमियम क्योंकि वहां पर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री थी, और आपका ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। तो उसके ड्यू टू दिस इंडस्ट्री के एक्टिविटीज के जो है कारण हमने ये देखा कि यहाँ पर क्रोमियम ज्यादा था। ऐसे ही आर्सेनिक में भी जो भी है वो हाई होने की संभावना होगी वहां पर इंडस्ट्री के एक्टिविटी के जो है कारण। सर, जैसा कि अभी हम लोगों को पता है, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट मेनली सर उतना फैक्ट्रियल है नहीं, लेकिन एक रीजन सर हमको लगता है कि गंगा के किनारे पर होने के कारण से भी ये होता है क्या? आर्सेनिक की मात्रा बढ़ सकती है क्या? हाँ, एक इससे भी बढ़ती है, और दूसरा हमारा जो जियोजेनिक एक्टिविटीज है, इससे भी कहीं कहीं उसकी मात्रा ज्यादा पाई गई है। वो भी एक हमारी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। सर, एक क्वेश्चन था मेरा। हेलो। ये हाँ।
सर बोले कि आजकल छोटों बच्चों को कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मतलब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? वो तो देखिए ऐसा है कि मैंने ये आपको बताया ना कि जो छोटे बच्चों को हो रहा है, क्योंकि ये आपका उसमें वो सबसे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वो अगर थोड़ी सी भी वो मात्रा में वो ले लेंगे तो जो हमारा बच्चे होते हैं, बच्चों की जो ह्यूमन इम्यूनिटी जो है वो वीक होती है। जब वो वीक होती है तो उसको बच्चे ज्यादा बीमार पड़ते हैं, तो उसके कारण उनको डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम या डिफरेंट टाइप की डिजीज होने की संभावना ज्यादा है। Satisfied everybody? Any more question? Anybody? किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है? सर मेरी एक लोकल क्वेरी है एक्चुअली। मैं डॉक्टर अंकिता हो जाऊँ, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट महाराजा कॉलेज से। हाँ बोलिए। सर मेरी ये क्वेरी, जैसे आज क्योंकि आपका ये लेक्चर था तो बहुत सारे फैकल्टीज के बीच में ये एक इंटरेस्ट का टॉपिक भी है हमारे यहाँ। तो डिस्कशन में सर ये पॉइंट उठा कि इज आरओ वाटर सेफ और नॉट, क्योंकि हमारे पास तो प्योरिफिकेशन का सिर्फ एक ही सोर्स है, आरओ, घर पे जो हम पानी कंज्यूम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सर अगर आप इस पे स्टूडेंट्स को क्योंकि कई बार ये होता है कि इस मिथ के चलते कि इट इज नॉट सेफ, लोग डायरेक्ट वाटर कंज्यूम कर रहे हैं जिसका शायद टेस्ट तो बहुत स्वीट होता है, बट आई डोंट नो कि इसमें कितने सारे डिसॉल्व मिनरल्स होते होंगे। मतलब ऐसा है कि आपको मैं ये बता दूं मैडम, आपका जो ये आरओ वाटर है, आरओ वाटर अगर आप लगाएंगे तो हमारे जो भी डिफरेंट जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म हो जो है जाते हैं। इसलिए आरओ आरओ जो है वाटर हम लगाने की तो बात ही जो नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो भी डिफरेंट जो भी हमारा भाई कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फेट, अगर वही सब हमारे खत्म हो जाएंगे तो वो उतना कारगर नहीं होगा। तो सर फिर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है प्रोबेबली? आपका जैसे एक्वागार्ड आप लगाइए, एक्वा जैसे आपका यूवी आ गया है, उसमें एक यूवी भी आता है। और सर एक चीज और जो मुझे कभी क्योंकि सर मेरा ये टॉपिक ऑफ रिसर्च भी है, वाटर वेस्ट वाटर एंड ट्रीटमेंट से रिलेटेड, तो मेरा एक और क्वेरी था इसी पे। ये जो मैंने ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो मुझे ये भी लगता है कि क्या ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना सर कि लाइक कानपुर में कोई इंडस्ट्री है और उसके लोकल एरिया का ग्राउंड वाटर अगर कंटामिनेटेड हो रहा है तो वो अंडरग्राउंड वे में भी सीप आउट कर करके दूसरे एरियाज में जाने के बिल्कुल चांसेस। बिल्कुल, वो तो जो है जब वो है कंटामिनेटेड तो वो भी कंटामिनेटेड होने की संभावना ज्यादा होती है। तो जो ये स्टूडेंट ने अभी पूछा कि भोजपुर के रीजन में आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज आ रही हैं, तो क्या ये भी चांसेस है कि कुछ ऐसा एरिया जो नॉट इन भोजपुर बट लाइक 1000 किलोमीटर अवे फ्रॉम भोजपुर हो, बट हमें जो कंटामिनेशन यहाँ आ रहा है वो उस एरिया से ही सीप इन कर करके आता हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब ये अगर मैंने देखा जो आपका भोजपुर एरिया है वहां पर कोई इंडस्ट्री तो कहीं है नहीं। यस सर, बिल्कुल इंडस्ट्रियल एरिया है सर पूरा। हाँ, तो एग्रीकल्चर। अगर ज्यादा हो रहा है तो वो आपका जियोजेनिक एक्टिविटी से भी वो ज्यादा होता है ना आर्सेनिक। Okay, Ankita ma'am. Yes ma'am. Now, now you Thanksgiving from you. Thank you. सर हेलो, हाँ, yes, who? क्या बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी आर्सेनिक की मात्रा बढ़ सकती है? क्या चीज? बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी आर्सेनिक की मात्रा बढ़ सकती है ग्राउंड वाटर में? नहीं, बाढ़ प्रभावित में तो संभावना कम जो होती है अभी, और उसमें रिसर्च चल रही है, लेकिन उसमें जो अभी तक जो देखा है कि संभावना कम होती है। तो सर उत्तरी बिहार में भी तो आर्सेनिक की मात्रा है जो कि बाढ़ प्रभावित इलाके हैं। हाँ हाँ,
आपका तो आर्सेनिक तो पूरा आपका ईस्टर्न यूपी में भी ज्यादा है। That बहुत may be जगह जियोजेनिक एक्टिविटीज है ना, जियोजेनिक एक्टिविटीज या फ्लो करके आ रहा है इंडस्ट्रियल एरिया से, ऐसा भी हो सकता है। हाँ हाँ हाँ। Mostly due to that. Increase of arsenic is mostly due to that. थैंक यू मैम। And Ankita ma'am, now Yes. you'd like to thank Hello. her for such wonderful and informative lecture. Yes ma'am, yes ma'am. हेलो मैम, तब तो जो भी गंगा रिवर के किनारे सिटीज हैं उन सब में आर्सेनिक की मात्रा इंक्रीज होगी। ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा वाटर फ्लो के साथ होता है कि सही सब कुछ यूनिफॉर्म एक साथ हो, यूनिफॉर्म ऐसा हो तो नहीं होता है। वो जिस एरिया का जहाँ मटेरियल मिनरल जितना ज्यादा है उस तरह से फ्लो करेगा। दिस इज क्वाइट डिस्टिंक्टिव, नॉट यूनिफॉर्म। एक्चुअली ये राइट है मैम, क्योंकि ओके मैम। जो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट, बक्सर डिस्ट्रिक्ट एंड वैशाली, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में भी आर्सेनिक की मात्रा है ज्यादा, लेकिन कोई पर्टिकुलर जगह पे ही कुछ ज्यादा है, बाकी कुछ Yes, कुछ जगहों पे that is due to बहुत सर कम ने है। बताया due to geogenic activities. यस मैम, बहुत ही हाँ, लेवल कम रहता है कहीं कहीं जगह पे, डिस्ट्रिक्ट्स में हाँ भी। हाँ, तो that is no, यस that don't be uniform. Uniform नहीं है, because the geospatial matters है ना. These are the geospatial matters. Okay, sir. Very nice ओके lecture. Rankita, now you like to thank. Ma'am, yes Time is ma'am. over now. ओके मैम। हाँ. We come to the end of this seminar. I am very honored to deliver the vote of thanks on behalf of the organizing committee. First and foremost, I would like to thank our distinguished speaker for his insightful presentation and your expert analysis of the groundwater quality and its implication on human health has enhanced our understanding of this issue. Your research knowledge and passion for the subject is truly commendable and it is inspiring all of us to take action towards the safeguarding of Thank you, our sir, environment. for your great information. I would also like to acknowledge the hard work and dedication of the organizing committee, which worked tirelessly behind the scenes to make this seminar a success. And to all the participants, thank you for your active involvement and thought-provoking questions. Your engagement has made the seminar more interactive and valuable. So I would like to express my sincere gratitude to each one of you for attending this seminar. And I hope we will continue this legacy in future also. Thank you, Sunita ma'am, for taking this initiative, and especially special thanks to the sir for being our invited speaker. Thank you so much. थैंक यू मैम। Thank you, everyone. Thank you, everyone. थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। ओके थैंक यू। हेलो Thank you, ma'am. Thank you. हेलो हेलो मैम। हेलो सर। We can now log out, close the meeting as well. Sessions are over. Thank you so much, everyone.
अबे सर क्लोज कर रहे हैं ना?